Bootcamp 1.0, organized by the IEEE Region 10 ACEI Entrepreneurship Ambassador Team, Gujarat Section, in collaboration with IEEE Gujarat Section, IEEE SPS Gujarat Chapter, and IEEE Women in Engineering Gujarat Section. We've had 2 incredible days of learning and collaboration, and we are excited to dive deeper today into a topic that every aspiring entrepreneur wonders about: funding. Today's expert speaker is someone with a wealth of knowledge in startup funding and innovation strategy. Please join me in welcoming Mr. Sameer Vasant Kulkarni, sir. We welcome you, sir. Yeah, thank you. Sir is a highly accomplished technologist, innovation strategist, and defense veteran with over 2 decades of experience in advanced communication systems, IT infrastructure, and cybersecurity. He received his BE in Electronics and Telecommunications from Amravati University in 1996 and went on to pursue a diverse academic journey, earning a MS in Software Systems from BITS Pilani and MTech in Technology Management from DIIT Pune, and PG Diploma in Satellite Communication from ISRO CSS TEAP. Sir served in the Indian Air Force as an aeronautical engineer, where he played a crucial role in managing and modernizing critical communication and IT infrastructure, including tropo, satellite, optical, and mobile communications, as well as airport recovery systems and enterprise-level data centers. Currently, he serves as a Senior Vice President at Decimal Point Analytics, operating from Gift City, Gandhinagar, where he oversees IT infrastructure, cloud, and cybersecurity domains. He's a senior member of IEEE, a fellow of IIT, a certified ISO 27001 lead auditor, and a certified career counselor. He also has a strong academic presence, having proposed and taught the course Artificial Intelligence for Managers at DIAT. His areas of interest span across quantum computing, AI/ML, big data, cybersecurity, cloud, IoT, and networking. Sir, we are truly honored to have you with us today. Your multifaceted experience and strategic insights into both defense technology and enterprise innovations are invaluable, especially to young entrepreneurs venturing into the tech space. As a token of our gratitude, we would now like to present a virtual bouquet to Sameer, sir. We welcome you, sir. So Thank you so much. we are truly grateful for your time and presence today. Over to you, sir. Thanks a lot, Khushbu. Thank you for that wonderful introduction. And I would like to add one more into that scheme of things. I am an angel investor also. So I have already started investing on some startups. And that is how I'm getting connected with all these young entrepreneurs and understanding their energy, which is truly inspiring. Okay, so and over a period of last 1 year, out of Indian Air Force now, and trying to see the corporate world as well as the startup ecosystem and things like that. So yeah, that's how I'm here today to talk about funding part of it. It's very ironical that I'm talking to all the Gujus, Gujaratis, who have the money matters in their genes actually. Notwithstanding, so this is a good emerging field. So let me share my screen and then I will start my lecture. So please confirm once the screen is visible. Sure, sir, definitely. Yes, sir, it's visible now. Yeah. Thank you so much. Thank you for that confirmation. Thank you, sir. So here, I heard you had wonderful sessions last 2 days, wherein you understood how pitching and other things are to be looked into for a startup by a student. Now is the most critical aspect of how do you get funding, from where do you get funding, and things like that. So in the next almost 17 minutes or so, I will try my level best to make you understand as to where are the opportunities, where are the aspects, and where are the funding resources, which all of you can explore. And whosoever have joined, I would like all the people to be the startup entrepreneurs. So that is what my aim is.
If any of you become the startup entrepreneurs, I'll be feeling proud about it. Now, what I'm going to cover here is like the context, what we are looking forward to, the funding options and things like that. Why student startups matter, the funding landscape in India, the various government schemes and the grants which are available. There are, apart from that, there are some private and institutional funding also available. Apart from that, there are some campus incubators, competitions, which are the part of the startup ecosystem in India. And I will share some of the success stories, lessons from all the success stories, and we'll share some of the fantastic opportunities for all the youngsters right sitting here in Gujarat, before taking on any questions and any queries thereafter. Right. So let us start dwelling into it. First and the foremost is, what about student startups? So all of you are students. So the first question to all of you is, have you ever had a problem that made you think there should be an app for this? Maybe I would like your responses, maybe in a chat, or somebody can speak up. So what kind of problems made you think that you should have an app for that? Yeah, please go ahead. So you felt something about online courses, something about starting something on blogging, something on tutoring part, something on e-commerce. So any of you felt that, okay, this is the problem which I'm facing almost on a daily basis, or my family is facing, or my friends are facing. So I should have some kind of startup to solve that problem. Okay, fantastic. Maybe connecting with restaurants and food. You've got so many of them right now, Zomato, Blinkit, and a whole lot of things. Hello. Yeah. Sir, I also have one thing in mind. I've seen that like in remote places where like sometimes our car gets stuck. So there are no mechanics available over there. So I think Yeah, correct. if someone makes a startup regarding that, like have mechanics listed over there so that the nearest one can reach out. So that would be really beneficial for people who get stuck. Perfect. Any other points or any other suggestions? Any other things? People are not feeling problems or what? So this is where that's where most great startups ideas they begin, actually speaking. So you identify a problem which you face in your daily life, be it in your college, be it in your house, be it in your society, and then you start thinking about how I can make an effort to solve that particular problem, right? And to support that, I don't know. I wish this could have been there about when probably I started my journey in the job world, but probably it was not there. But now the startup ecosystem in India is booming actually. Um, to just tell you that it is the third largest in the world after US and China. And what this young entrepreneur talent is, almost 50% of the founders are under the age of 35. That is some age which all of you believe. So 3,000 college-based e-cells and incubators which are supporting these youngsters. Okay. There are almost close to 1 lakh DPIIT recognized startups in India as on date. And a global presence, like startups from India, they are solving the problems for local and international markets. So you must be aware about our UPI, JAM, and all this Trinity. So it is not only we are solving the problems of local Indians, but we are solving the problems of international market as well. Right? So may take it fintech, take it edtech, health tech, or climate tech, we are all there.
and the young minds are revolutionizing this space, right? So with all these inputs, what have you achieved till now? So we almost got 100 plus unicorns. Unicorns is a startup valued over $1 billion, right? That is close to around 6,000, 7,000 crores. To name some of the examples, when you see Flipkart, it was founded by ex-IITians in their 20s, right? Zerodha, it is built without external funding by two young brothers. Again, there was Ola, most of you use it. It was kickstarted by two IIT Bombay grads in their 20s, right? So, right at your age, people started looking for solving the real world problems. That is where the startup ecosystem is gaining the grounds. Now, what unique landscape is there for the student founders? Because all of you, you are bubbling with energy, you are fresh with ideas, you got absolutely boundless energy. Then there is high adaptability, learning agility, and a deep technical expertise to the table. Like I keep saying, whatever I can't understand in AI, ML, or the latest buzzword LLMs and things like that, I go to my daughter, who is again into 20s in the final year of her engineering. So I can see that you people have got that deep technical expertise and the hunger to learn more, right? But what are the challenges for what you people face? As per my understanding, there are only two challenges. That is limited financial resources or either the awareness of it and the nascent professional networks, what all of you have. Okay. So all your journey, typically this requires early stage capital, crucial mentorship to transform that whatever you thought of as a solution to a real world problem from a proof of concept to a minimum viable product, MVP, right? So that is the unique landscape for all of you students. And what does Gujarat offers? Typically, we are sitting in IIT Gujarat sections event. Gujarat basically is a offers business friendly environment. It provides robust infrastructure and skilled workforce. All of you are there to tag along with all your expertise, whatever you have gained in your academic studies. It is definitely a strategic location with strong industrial base, fostering growth. You name the industry, it is there. It is let it be healthcare, airport, ports, semiconductor, manufacturing, you name it, it is there, right? So it's an industrial hub. It has got a very well-connected logistics infrastructure. And as I'm telling you, abundant talent pool, which all of you can pull together to make a startup, right? No $1 million question. When you have to start a startup, so what does it take to become a winner in this game? If you want to do a startup, a successful startup, is it money or is it access to quality deals? Right? What I generally feel, it's a combination of both of them. Right? It is not only money. Even if you get, let us say, funding of 2 crores, 3 crores, 5 crores, but you don't have the quality deals or mentorship and things like that, networking and things like that, you will never be able to succeed. So it's a combination of both money as well as quality deals, which are offered by the mentors and experts. Okay. Now, why do you require funding for? So when it comes to any particular startup, whether you want to create a prototype, whether you want to develop any product for the market, then you require funding for team hiring. As of now, maybe whatever you have thought of, only 2 of you or 1 of you have thought of. But then growing forward or interacting with people, you definitely require a high quality team. So for team, you require funding. You require working capital if you are doing a startup in manufacturing or any other sector. Even let us say you are starting from high tech on computers and things like that, you require cloud resources, you require IT resources, right? Then very important, legal and consulting services. And if you are specifically into manufacturing, then you'll require the funding for raw material and equipment. And going forward, it is up to about licensing and certifications, marketing and sales,
And if you want to grow, the startup can start up from any of the rooms of your house. But growing forward, you'll definitely require office space and other administrations associated with it. So for all these things, you'll require funding, right? Now, when you start doing the first thing comes to your mind is valuation. That is where you will seek funding, right? But when you go to the investor, when you go to anybody, you want to know how much money you are going to ask for. So you have to determine how much equity you give up for funding, right? So you have to actually see how much valuation is there for your particular product, and it's then definitely set the expectations with the investors. And not only that, even for the investors, it helps setting up a benchmark, right? So in brief, for any startup funding, there are basically three types of funding. One is equity financing, one is debt financing, or last one is grants. So when you say of equity financing, these basically you give a portion of your startup to a particular investor. So you are giving your equity of your startup to the investor. There is no component of repayment of the invested fund, right? But when it is debt financing, which most of you people must have heard during Shark Tank and things like that, when they say, okay, we will give you 2% of equity and 10 lakh rupees in loan, that is debt, right? So in that case, that invested funds, you have to repay it within a stipulated time frame. So you have to take a call whether to go for complete equity, where there is no component of repayment, or you go for debt, wherein you require to invest something. Okay, and there are grants also. Is it okay if I continue to speak in English, or Hindi is also okay sometimes? So So I think I saw some people asking for Hindi also. Yeah, here there is a mixed audience. Okay, no problem. तो आपको इक्विटी भी चाहिए, डेट भी चाहिए और ग्रांट भी मिल सकती है, राइट? नाउ दिस इज जस्ट अ बिट ऑफ थ्योरी, ओनली थ्योरी. इससे ज्यादा परेशान नहीं होना है आपको. जस्ट आपको ये पता होना है कि कितने तरह के वैल्यूएशन पॉसिबल है. ओके, there are these methods. I will share all these slides to all of you, but for all of you to know that there are some methodical ways wherein you can do valuation of your startup. Okay, only two I will cover. First is Workus method, wherein it is for pre-revenue and the startups, which all of you will be interested in, wherein you will assign values to 5 key factors: idea, prototype, team, market, and traction. So if you assign these values to these 5 key factors, so you can make a valuation of roughly 4 to 5 crores totally, right? And then you can customize this valuation based on the scorecard method, wherein if you are high tech, then you can increase the cost. If you are low tech, then you can reduce the cost and things like that. The other parts, once you start getting into it, you will understand the valuation much better. But what I want you to know is only 2 methods for all the startups. First is the Workus method, wherein you have to have sound idea with a prototype. If you can do that, बहुत अच्छी टीम होनी चाहिए आपके पास, बहुत अच्छे मेंटर्स होने चाहिए. अगर मेंटर्स है आपके पास या पार्टनरशिप्स अच्छी है, तो उससे इन्वेस्टर्स खुश होते हैं, राइट? एंड अर्ली ट्रैक्शन और यूजर इंटरेस्ट. लोगों को दिख रहा है कि हाँ, ये जैसे ब्लिंकिट जब आया, उससे पहले उन्होंने इंटरेस्ट जगाना शुरू कर दिया, 10 मिनट में डिलीवरी एंड थिंग्स लाइक दैट, राइट? And then subsequently you can use it or tweak that valuation based on your assessment. So basically what investors, they prefer the realistic valuations with room for growth. आपको ऐसा भी नहीं करना है कि मैं valuation बना दूं पहले 20 करोड़ का और expect some funding from the investor which they will never give it to you. Okay, so typical pre-seed valuation in India, it is roughly 2 to 6 crores. Okay, ये 2 से 6 करोड़ तक का अगर वैल्यूएशन में रखता हूं,
तो मुझे कितना फंड मिल सकता है, ये वी विल कवर इट सब्सिक्वेंटली. ओके, बट बिफोर दैट इन्वेस्टर क्या देखते हैं जब कोई उनके पास स्टार्टअप फंडिंग के लिए आता है, तो बेसिकली वो क्या देखता है? बेसिकली वो ये देख रहा है कि इज द स्टार्टअप सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स. जो भी स्टार्टअप की टीम है, आर दे कोचेबल और कमिटेड विथ कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स. एक है उसमें जो फाइनेंस जानता है, एक है उसमें जो ऑपरेशन जानता है, एक है जो बाकी सारी चीजें जानता है, बेसिकली जुगाड़ जानता है. तो ऐसी पूरी अगर कॉम्प्लीमेंट्री स्किल के साथ में आपके पास टीम है तो बहुत अच्छा है, राइट. फिर वो मार्केट भी देखते हैं, लार्ज है, ग्रोइंग मार्केट है, या अंडर सर्व्ड है, अभी तक कोई उसमें गया ही नहीं है. बहुत सारा आजकल के क्लीन स्टार्टअप में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग अभी क्लीन स्टार्टअप में गए नहीं है, राइट. तो अगर ऐसा कोई स्टार्टअप बना रहा है तो डेफिनेटली पीपल विल गो इन फॉर इट. ट्रैक्शन मतलब क्या होता है कि अगर आपने कुछ प्रोडक्ट सोचा है, कुछ सॉल्यूशन सोचा है, तो क्या उसको 100 लोग यूज कर पा रहे हैं या 100 लोग यूज कर रहे हैं. आपने एक ऐप बना दिया, राइट, लेट अस से ब्लिंकिट टाइप या ई कॉमर्स टाइप कोई ऐप बना दिया आपने, तो क्या कितने लोग यूज कर रहे हैं उसको? अगर आप कुछ पायलट प्रोजेक्ट बनाओगे और उसके बाद में फिर लोगों को बोलोगे कि अच्छा भाई अब मैंने ये प्रोडक्ट बनाया है, अभी आप बताओ मुझे कि कितना यूजफुल है, कैन वी यूज इट एंड थिंग्स लाइक दैट, तो आपको पता चलेगा कि हाँ लोगों में इंटरेस्ट जग रहा है, तो आई शुड गो फॉर इट. एंड दैट ट्रैक्शन इन्वेस्टर्स ऑल्सो लुक फॉर. और एक अनदर चिराग सर ने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया था ऑफ स्टार्टअप पिचिंग. सो कैन यू एक्सप्लेन योर वैल्यू इन 60 सेकेंड्स. तो अगर 60 सेकेंड्स में आप अपना वैल्यू बता सकते हो तो वो बहुत अच्छा पिच माना जाता है, राइट. और फिर बाद में फिर इन्वेस्टर्स ये देखते हैं कि अगर पैसा बनाने लगे तो मैं कब कहां एग्जिट कर सकता हूं, कहां से निकल सकता हूं, राइट. तो ये सारे तरीके हैं जिससे कि आपको फंड मिल सकता है. फर्स्ट इज बूटस्ट्रैपिंग. बूटस्ट्रैपिंग मतलब आप खुद का पैसा लगा रहे हो. खुद का पैसा मतलब अपने फैमिली से, अपने दोस्तों से, कहीं से भी आपका सेविंग है, आपके फादर का सेविंग है, मदर का सेविंग है, आपके फैमिली में कोई काम कर रहा है जो आपको पैसा दे रहा है 10 लाख 5 लाख, और उसी फंड से अगर आप कुछ करना चाहते हो या कर रहे हो तो उसको बोलते हैं बूटस्ट्रैपिंग, राइट. बूटस्ट्रैपिंग मतलब आप कहीं और बाहर से पैसा नहीं ले रहे हो, खुद के पैसे से आप पूरा बना रहे हो, ठीक है. देन कम्स एंजल इन्वेस्टर्स. एंजल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो आपके आइडिया पे भरोसा रखते हैं कि हाँ भाई ये बंदा जो सोच रहा है वो एकदम सही है, इसमें हम पैसा डाल सकते हैं. तो आजकल का बहुत जमाना चल रहा है, 10 मिनट में ये आना चाहिए, 10 मिनट में वो आना चाहिए. तो ऐसे अगर ई स्टार्टअप और ई कॉमर्स में कोई ऐप बनाता है और उसको कुछ यूनिक सेलिंग पॉइंट बनाता है कि मैं उसमें आपको हर डील पे आपको कैशबैक दूंगा, तो एंजल इन्वेस्टर्स को कुछ भरोसा बैठ सकता है, राइट. और फिर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं. देन कम्स वेंचर कैपिटल. तो अगर आपका स्टार्टअप बड़ा हो रहा है, आपको ज्यादा पैसा चाहिए, तो आपको, और स्केलेबल मॉडल है, तब आपको वेंचर कैपिटल के पास जाना पड़ता है. देयर आर अदर ऑप्शंस ऑल्सो, जैसे क्राउड फंडिंग. ये क्या होगा ये मैं सब्सिक्वेंटली बताऊंगा आपको. और लास्टली होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. यानी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टाटा, बिरला या अमेजॉन, गूगल, ये अपना एक इनकम का हिस्सा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत स्पेंड करते हैं. उसको आपको देते हैं ताकि आपकी सोशल जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व किया जा सके. तो वो भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आते हैं जिसमें आप, अगर आपका स्टार्टअप कोई सोशल प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रहा है, तो वो आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉर्पोरेट ग्रांट भी आप ले सकते हो. तो अगर आप देखोगे स्टार्टअप फंडिंग में, तो ये बेसिकली प्रोसेस है. तो आइडिया स्टेज में आप हो सकते हो, या फिर एंजल इन्वेस्टर्स हो सकते हो, या तो फिर सीरीज ABC फंडिंग. ये बेसिकली क्या होता है सब्सिक्वेंटली एक बार बताएंगे. देन प्राइवेट इक्विटी फंड्स, एंड फाइनली वो जाता है IPO एक्विजिशन की तरफ, ठीक है. तो ये आपका फंडिंग साइज है और वैल्यूएशन रेंज है. तो ये आपके सिर्फ नॉलेज के लिए है अभी.
सीरीज ए बी सी फंडिंग जब आपका स्टार्टअप ग्रो होगा तब आपको पता चलेगा। बट आपके जानकारी के लिए सिर्फ इतना मैं बता दूं कि अगर आपके पास वैल्यूएशन नहीं है या अनडिफाइंड है तो आपको 10 लाख तक का फंडिंग मिल सकता है, सिर्फ आपके विजन के लिए। अगर आपकी टीम सही है और आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो आइडिया स्टेज पे ही है तो तब भी आपको 10 लाख तक का फंडिंग मिल सकता है। एंजल लेवल पे अगर आपके पास में आपने कुछ प्रोडक्ट बना लिया या तो फिर आपने कुछ ऐप बना लिया और आपके पास है कि अब मेरे 10 लोग यूज कर रहे हैं, 15 लोग, 100 लोग यूज कर रहे हैं तब, और आपका वैल्यूएशन अगर 2 से 10 करोड़ है तो आपको 2 करोड़ तक का फंडिंग मिल सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप देखोगे आगे जाकर के तो ये सारे फंडिंग बेस्ड ऑन वैल्यूएशन आपको उतना फंडिंग मिल सकता है। कहां से मिलेगा ये सब्सिक्वेंटली मैं आपको बताऊंगा। तो आइडिया बूटस्ट्रैपिंग क्या होता है? आइडिया बूटस्ट्रैपिंग में फाउंडर्स वो खुद इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे मैंने बोला कि खुद के पैसे या फैमिली फ्रेंड्स के पैसे या स्टूडेंट कंपटीशन बहुत सारी होती है, स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन है, कैंपस में बहुत सारे कैंपसेस में आजकल ग्रांट दी जाती है। तो उसमें क्या होता है, सिर्फ फाउंडर के विजन और पैशन पे भरोसा करते हैं लोग और पैसा डाल देते हैं कि मुझे ये बंदे का आइडिया पसंद आया और मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ। दैट इज आइडिया बूटस्ट्रैपिंग, राइट। एंजल और प्री सीड में बहुत सारे एंजल नेटवर्क है इंडिया में, वी कैट्स है, इंडिया एंजल नेटवर्क है। ये सारे एंजल नेटवर्क्स इट इज अ ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स बेसिकली। ये आपके स्टार्टअप में देखते हैं आपको और उनके पास एपेटाइट होती है, पैसा भी होता है तो वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आपका स्टार्टअप अगर वैल्यूएबल लगता है उनको तो वो जरूर इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आपके पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है आपको, तो आप माइक्रो वीसी में भी जा सकते हो या एक्सेलेटर्स में भी जा सकते हो। नाउ दीज आर ऑल फॉर एकेडमिक इंटरेस्ट। आपको सिर्फ पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ग्रो करते हो तो कौन सा इन्वेस्टर कहाँ इन्वेस्ट कर सकता है ये अगर आपको पता है तो उतनी आपके लिए आसानी होगी कि हम किससे फंड उठा रहे हैं, क्यों उठा रहे हैं, और वो जस्टिफाइड है भी या नहीं है। ओनली देन आपको ये पता चलेगा कि सही है, हम फंडिंग सही सोर्स से उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं। तो जस्ट फॉर योर एकेडमिक इंटरेस्ट, सीरीज एबीसी फंडिंग बेसिकली इंस्टीट्यूशनल वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स होते हैं या कॉर्पोरेट वेंचर आर्म्स होते हैं। तो वो क्या देखते हैं, बेसिकली दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गुड प्रोडक्ट मार्केट फिट और रेवेन्यू ग्रोथ, कि आपको रेवेन्यू मिल रहा है, 100 करोड़ का बिजनेस दिख रहा है, आपका मंथली रेवेन्यू हो रहा है, जनरेट हो रहा है, तो फिर वो सीरीज ए फंडिंग या सीरीज बी फंडिंग या सीरीज सी फंडिंग करते हैं डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूएशन, राइट। और लास्ट स्टेज होता है प्राइवेट इक्विटी और आईपीओ एक्विजिशन। तो ये जब आप पहुंच रहे होते हैं कि जब आपका यूनिकॉर्न बन रहा होता है, $1 बिलियन रेवेन्यू तब होता है और आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगता है, तब ये इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं। बट फॉर अर्ली स्टेज, फॉर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स के लिए बेसिक एक टिप है दैट रिलेशनशिप्स एंड स्टोरी टेलिंग, कि आपके किसी के साथ क्या कैसे संबंध है और आप कैसे अपनी स्टोरी बता सकते हो, कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसको कैसे आप लोगों को पटा सकते हो, उसके ऊपर बहुत सारा फंडिंग डिपेंड होता है, राइट। वहां पे लोग स्प्रेडशीट, मैट्रिसेस, गवर्नेंस बाकी सब नहीं देखते हैं, वो सब क्रूशियल हो जाता है व्हेन यू मूव एट अ लैटर स्टेज। बट फॉर ऑल ऑफ यू इन अर्ली स्टेजेस आपको सिर्फ इतना आना चाहिए कि मैं अपना आइडिया दूसरों को कैसे बेचूं, दैट्स इट। ओके, सो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। जैसे बूटस्ट्रैपिंग है, राइट। बूटस्ट्रैपिंग इज पर्सनल सेविंग या अर्ली रेवेन्यू से है। मैंने कुछ ऐप बनाया, उसको मैंने मार्केट में लाया, मार्केट में यूज करने के बाद में मेरे को कुछ पैसा मिला, उसी पैसे से मैं फिर इन्वेस्ट कर रहा हूं और डेवलपमेंट करने के लिए, राइट। सो इसमें क्या होता है कि आपको एक्सटर्नल कोई डिपेंडेंस नहीं रहता है, कोई डेट नहीं रहता है, और कोई आपको अपना पूरा जो इक्विटी है उसको किसी को देने की जरूरत नहीं होती है। जो शार्क टैंक में अगर आपने देखा होगा या किसी और पे देखा होगा, तो अगर बूटस्ट्रैप कंपनी है तो आप खुद का पैसा जनरेट करो और खुद ही इन्वेस्ट करके उसको ग्रो करते रहो, राइट। तो इसमें जनरली मैंने ये देखा है कि 1 से 10 लाख तक का फंडिंग कोई भी लोग ले सकते हैं, राइट।
अब हम आते हैं इंक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स। ये है बहुत बहुत सारे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स है। ओके, 3 से 6 महीने के ये सारे प्रोग्राम्स प्री प्लान्ड होते हैं। ओके, दे प्रोवाइड मेंटरशिप, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। तो आपको कैसे मेंटोर करना है, क्या करना है, ये सब आपको वो उस स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम में सिखाया जाएगा या बताया जाएगा। तो अगर आपने नीचे देखा होगा IIM अहमदाबाद या IIT बॉम्बे या IIM बैंगलोर, IIT दिल्ली, अभी यहाँ पे इधर IIT गांधीनगर है, या फिर आई एम 100% श्योर कि बहुत सारी आपकी यूनिवर्सिटीज है, उसमें भी ये बहुत सारे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स ओपन है जो कि आपको हेल्प करते हैं टू ग्रो योर स्टार्टअप। अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की भी है इसमें। तो गवर्नमेंट भी आपको बहुत सारी ग्रांट्स और स्कीम्स देता है। ये तो सिर्फ आपको सिर्फ बताने के लिए मैंने कुछ स्कीम्स यहाँ पे लिखी है, जो कि स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम है, जिसमें कि आपको 20 से 50 लाख तक का फंड मिल सकता है। ओके, आपके पास अगर कोई प्रोडक्ट है, कोई ट्रायल्स है, तो आप उस फंड में जा सकते हो और गवर्नमेंट आपको उतना पैसा देगा। आपका कल और एक इवेंट है इसी सीरीज में, जिसमें अटल इनोवेशन मिशन के बारे में और उनके बारे में भी कहा जाएगा। तो दे विल कवर इन डिटेल अबाउट अटल इनोवेशन मिशन। तो उसमें भी काफी सारी मेंटरिंग और ग्रांट्स मिलते हैं। देन मेटी अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसका भी टेक स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स है। निधि प्रयास एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है। मुद्रा लोन्स है, ये आपको 10 लाख तक के लोन बिना किसी कोलैटरल के, बिना किसी गारंटी के आपको मिलते हैं, जिससे कि आप अपना कोई भी स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। और ऐसे ही स्टार्टअप आई स्टार्ट राजस्थान, टी हब तेलंगाना, आई हब गुजरात, ये सारे स्टेट्स ने भी अपने अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम शुरू किए हैं। तो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैंने एक लिस्ट बनाई है कि कितने मिशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडिंग के सोर्सेस आपको देता है। तो जैसे मैंने पहले कहा आपको कि ये पूरी प्रेजेंटेशन में आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप जा सकते हो एक एक करके। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जो आप अपना स्टार्टअप आइडिया देखो, इसमें से कौन सा आपको सूट करता है वो देखो, उसकी एलिजिबिलिटी देखो, एंड यू कैन अप्लाई एंड यू विल गेट द फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दीज आर सम मोर गवर्नमेंट स्कीम्स जो आपको स्टार्टअप के लिए फंडिंग दे सकती है, राइट? स्पेशली फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यू मस्ट, आप सब लोगों को ये साइट जरूर आप ऐड करके रखिए, मार्क करके रखिए, startupindia.gov.in। आपके पास ये वन स्टॉप शॉप है, जहां पे आपको सक्सेस स्टोरीज मिल सकती है, आपको आइडियाज मिल सकते हैं, आपको मेंटोर्स मिल सकते हैं, इन्वेस्टर्स कौन है मिल सकते हैं, या कहां कहां आपको जाकर के फंडिंग मिल सकती है, वो सारा इस साइट पे आपको मिल सकता है। ओके, और आप अगर देखोगे तो देर आर ऑलमोस्ट क्लोज टू 13,000 स्टार्टअप रजिस्टर्ड ऑन दिस पोर्टल। तो वो स्टार्टअप कैसे है, कौन है, तो अगर आपके विसिनिटी में कोई स्टार्टअप है तो आप उसको एक्सप्लोर करके आप उसके पास जा सकते हो, मिल सकते हो, और आप उसके साथ गाइडेंस भी ले सकते हो, राइट? देन कम्स टू एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर्स होते कौन है, या ये नेटवर्क्स होते किसके हैं? तो बेसिकली एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जिसके पास बहुत पैसा है। ऐसे गुजरात में तो बहुत मिलते होंगे आपको, राइट? सो उनका अपना बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, बहुत सारा पैसा अपने घर में रखा हुआ है, या उनके बिजनेसेस है, बिजनेस से पैसा आ रहा है। तो ये लोग क्या होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, HNIs बोलते हैं इनको। ये लोग दे ऑफन प्रोवाइड मेंटोरशिप भी करते हैं आपको, और आपको पैसा भी देते हैं। और उसमें फिर वो इक्विटी मांगेंगे या कभी डेट पे देंगे। तो ये आपको डिसाइड करना है कि कौन इन्वेस्टर है, उसका क्या रैशनल है, वो किस वजह से इन्वेस्ट करना चाहता है, आपको टेक ओवर तो नहीं करेगा। ये सब सोच करके, देख करके आपको इन्वेस्टर चूज करना है। तो बहुत सारी, जैसे 50 लाख से लेके 2 करोड़ तक का फंडिंग ये लोग दे सकते हैं, राइट?
तो देयर आर सम इंडिया एंजल नेटवर्क्स, मुंबई एंजल नेटवर्क, हैदराबाद एंजल नेटवर्क, ऐसे बहुत सारे एंजल नेटवर्क्स है जिसमें ये हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स जो है, इन लोगों ने अपने अपने ग्रुप्स बना रखे हैं और उनका जो भी डोमेन स्पेसिफिक एरिया है, जैसे इंटरेस्ट है, जैसे कुछ लोग हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स है जो ओनली फार्मेसी में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग है तो उनका फोर्टे है कि मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता हूं। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं जो एंजल इन्वेस्टर्स जिनको बोला जाता है। अगर आपको ये पता है कि आप किस एरिया में आप जाना चाहते हो, तो आपको उस पर्टिकुलर एरिया का एंजल नेटवर्क मिल जाएगा और फिर आपको उनके पास पिच करना है और वो आपको पैसा देंगे। अर्ली स्टेज वेंचर कैपिटल ये तो थोड़ा सा और एडवांस लेवल हो जाता है, जहां पे इंस्टीट्यूशनल फंडिंग आती है, जहां के जब आपका स्टार्टअप बड़ा हो जाता है या कौन ये करता है। तो आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ दिस, बट जस्ट आपके नॉलेज के लिए आप याद रखिए दैट देयर आर वेंचर कैपिटल अदर देन द एंजल इन्वेस्टर्स। ओके, जो सिर्फ इन्वेस्ट ही करते हैं, इन्वेस्टमेंट उनका काम है। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है जो पैसा लेकर के इक्विटी में लगाती है, म्यूचुअल फंड्स में लगाती है और फिर उनको पैसा जनरेट करके आपको देती है एज ए स्टार्टअप इन्वेस्टर। और एक बहुत जबरदस्त तरीका है आजकल के जमाने में, क्राउड फंडिंग। तो बेसिकली क्राउड फंडिंग मतलब एंजल नेटवर्क है जो हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स है, राइट। पर जैसे हमारे पास बहुत सारे, जैसे आपने गुजरात में देखा होगा अमोल इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऐसे बहुत सारे कोऑपरेटिव एजेंसीज है जो कि कम्युनिटी बेस्ड है, राइट। तो छोटे छोटे लोग ऐसा ग्रुप बना करके तो दे कैन रेज स्मॉल अमाउंट्स। बहुत सारी जगह पे मैंने देखा है 5,000 मिल करके उन्होंने 10 लाख रुपए जमा किए और उसके साथ कुछ सोलर पैनल लगाने के लिए किसी एक बंदे को दिया और उसने सोलर पैनल लगा दिया। तो ऐसे बहुत सारे क्राउड फंडिंग के ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल है। तो अगर आप देखोगे तो प्लेटफॉर्म्स लाइक केटो, मिलाप, इम्पैक्ट ग्रुप, ये बहुत सारे पॉपुलर क्राउड फंडिंग नेटवर्क्स है जिनको कि आप अप्रोच कर सकते हो, राइट। वो जनरली बहुत सारा पैसा नहीं दे सकते हैं, बट स्टिल अगर आपका स्टार्टअप इनिशियल लेवल पे है तो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, इन्वेस्टर्स तो वो देखेंगे कि इसके पास प्रोडक्ट है कि नहीं है, वैल्यू है कि नहीं है, प्रॉफिट है कि नहीं है। लेकिन क्राउड फंडिंग में वो लोग उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि नहीं है, ये देखते हैं। अब बहुत बहुत जरूरी है, आप अभी सब लोग पढ़ रहे हो या जो भी अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर्स है, जो ग्रेजुएट्स है, वो उनको पता होगा कि यूनिवर्सिटी आल्सो हैज गॉट लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप सेल्स और उनके एल्यूमिनी का भी एक फंड होता है। IIM अहमदाबाद में मैंने देखा है, IIT गांधीनगर में देखा है, इनके जितने भी एल्यूमिनीज है वो उनके नाम से कुछ फंड स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में। तो वो फंड भी आपको मिल सकता है। तो अगर आपको पता है कि कोई एल्यूमिनी, उसका क्या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, क्या करना चाहता है, और उसके बाद में उसके साथ आपका फंडिंग अलाइन हो रहा है, तो आपको वो भी फंडिंग मिल सकता है, राइट। तो ये डेडिकेटेड फंड है, बेसिकली दे गिव फॉर योर इंप्रूवमेंट। तो इट इज समथिंग लाइक गिविंग बैक टू द सोसाइटी। तो मैंने ग्रेजुएशन कराया है फ्रॉम सम कॉलेज और मैं अभी बहुत बड़ा हो चुका हूं, तो मैं सोसाइटी को या अपने कॉलेज को कुछ देना चाहता हूं। तो ऐसा करके बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में, बहुत सारे कॉलेजेस में फंड्स बने हुए हैं, एंटरप्रेन्योरशिप सेल्स बने हुए हैं, तो वो भी आपको फंड कर सकते हैं। अभी ये सब रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स में आपको बताने जा रहा हूं। तो आइडिया है प्री सीड स्टेज के, मैं सिर्फ रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं अभी सिर्फ आइडिया या प्री सीड स्टेज। प्री सीड स्टेज मतलब अभी आपके पास रेवेन्यू नहीं है, आपके पास सिर्फ आइडिया है और आपके पास कुछ प्रोडक्ट है जो आप मार्केट में लेके आना चाहते हो, राइट। तो ऐसी एक स्टार्टअप थी सनफॉक्स टेक्नोलॉजीज। तो सनफॉक्स टेक्नोलॉजीज बेसिकली ये पोर्टेबल ईसीजी डिवाइस बनाते हैं, राइट। तो इट हैज गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोशल इम्पैक्ट अपील, क्योंकि ईसीजी डिवाइसेस में अगर आप जाओगे बड़े बड़े अस्पतालों में बहुत सारा पैसा लेते हैं, बहुत सारा पैसा लगता है। बट इन्होंने अपना एक यूनिक सेलिंग पॉइंट बनाया कि हम बहुत कम खर्चे में पोर्टेबल ईसीजी डिवाइस दे सकते हैं। तो इन्होंने वैल्यूएशन बनाया करीब $1.2 मिलियन का, ओके। और उनको शार्क टैंक से करीब
एक 1.2 करोड़ पैसा मिला, राइट। तो आपको ऐसे ही आपको देखना है कि आप कौन सा रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हो और आपको कितना पैसा मिल सकता है। ऐसा ही और एक स्टार्टअप है सुपर ह्यूमन, यूएस में है, जो कि ईमेल प्रोडक्टिविटी टूल है, राइट। उन्होंने पहले देखा कि मेरा बहुत सारा ईमेल्स मेरे को आता रहता है, बट उसमें मैं क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ मुझे नहीं पता। तो उसने अपने ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्रोडक्टिविटी टूल बना दिया, जिसका की वैल्यूएशन उसने बनाया $5 मिलियन, और उसको करीब करीब 750,000 डॉलर्स का प्रीसीड फंडिंग मिला, राइट। अब ये फंडिंग कैसे मिला, तो उन्होंने अपना पिच बनाया, और जो मैंने आप पहले कहा है कि इन्वेस्टर के पास गया, एंजल इन्वेस्टर्स के पास गया, नेटवर्क के पास गया, और उनके पास अपना आइडिया स्टोरी टेलिंग करके बेचा, तब उसको उतना पैसा मिला। ऐसे ही एक इंडिया में कंपनी है क्रेड, ऑल ऑफ यू मस्ट बी अवेयर, राइट। तो कुणाल शाह करके जो एक स्टार्टअप फाउंडर है, उसने फिनटेक में ये स्टार्टअप बनाया, ओके। इट वॉज प्योरली रेज बेस्ड ऑन द फाउंडर्स क्रेडिबिलिटी। कुणाल शाह के नाम से उसने बनाया, राइट। अपनी क्रेडिबिलिटी थी उसकी, क्योंकि उसने बहुत सारे ऐसे एप्स बनाए थे, तो उसकी क्रेडिबिलिटी पे ही उसने फंडिंग उठाया। तो जब उसने ऐप बनाया जिसमें कि क्रेडिट कार्ड के बिल पे कर सकते हो, फिर आपको कैशबैक मिलेगा एंड ऑल दिस थिंग, उसने एक आइडिया बनाया, एक ऐप बनाया, मार्केट में लेके आया, कुछ लोगों को पहले दिखाया, फिर उसके बाद में उसने उससे कुछ पैसे जमा करके उसने एक वैल्यूएशन बनाया $10 मिलियन का, और करीब करीब उसको एंजल नेटवर्क से करीब करीब $1 मिलियन फंडिंग मिला। फिर उसने उसी फंडिंग को यूज करके उसको और बेहतर तरीके से बनाया, राइट। देयर इज अनदर स्टार्टअप व्हिच इज यूएस बेस्ड कॉल्ड नोशन, राइट। इट्स अ प्रोडक्टिविटी प्लेटफॉर्म। अभी बहुत सारे आप टू डू लिस्ट ये सब देखते हो, तो ऐसे ये बनाने के लिए इन्होंने एक ऐप बनाया, ओके। तो उन्होंने पहले पूरा ऐप बना करके मार्केट में पहले रिलीज किया, देखा, इंटरेस्ट ट्रैक्शन देखा। जब देखा लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, तो फिर उन्होंने मार्केट में लेके गए कि अभी उसको फंडिंग उठा करके और बेहतर तरीके से करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने वैल्यूएशन बनाया करीब $10 मिलियन का, और इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने उनका पिचिंग किया या बेचा उसको कि उनको ऑलमोस्ट $2 मिलियन का प्री सीड फंडिंग मिला, राइट। दीज आर सम मोर एग्जांपल्स। एक इंडिया का है रेजर पे, आप सब जानते हैं क्योंकि आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या कुछ ना कुछ ऑनलाइन खरीदते हैं, तो इसमें ये जरूर यूज होता है रेजर पे, राइट। सो रेजर पे इट्स अ पेमेंट गेटवे, इट इज बैक्ड बाय Y Combinator। तो इसको भी पहले इन्होंने पूरा ऐप बनाया, फिर उसको लोगों के पास लेके गए, उनसे देखा कि बहुत अच्छा ट्रैक्शन मिला। उन्होंने फिर बहुत सारे बैंक्स के साथ टाइप किया, बहुत सारे कंपनीज के साथ टाइप किया कि आपको अगर पैसा चाहिए तो हमारा ये पेमेंट गेटवे है, और बहुत अच्छी तरह से स्टोरी टेलिंग करके फॉर $10 to $15 मिलियन वैल्यूएशन दे ऑलमोस्ट गॉट $3 मिलियन का फंडिंग in 2015, and now you know Razorpay is one of the topmost payment gateways in India, and it provides services outside India also, right? ऐसा ही एक यूएस बेस्ड स्टार्टअप है called Figma. So basically it is collaborative design tool. I'm sure all of you are using it, right? तो it is basically बहुत अच्छा प्रोडक्ट मार्केट फिट था, क्योंकि आजकल के जमाने में वो चाहिए था। जो फोटोशॉप या अदर चीजें थी वो बहुत कॉस्टली थी, सब लाइसेंसेस एंड थिंग्स लाइक दैट, बट उसको उसका तोड़ निकालने के लिए इन्होंने ये फिग्मा बनाया। तो जब उन्होंने वैल्यूएशन बनाया करीब करीब $14 मिलियन का, तो उनको ऑलमोस्ट $4 मिलियन का सीड मनी मिला पहले ही राउंड में। तो ऐसे करके आपको वैल्यूएशन करना है और आपको पिच करना है टू रिलेवेंट इन्वेस्टर्स। तो आपके लिए क्या है, स्टूडेंट टेकअवे क्या है आपके लिए? तो सबसे बहुत जरूरी है कि आपको एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, राइट। नहीं तो बहुत सारे आजकल लोग आ जाते हैं कि मैं कुछ भी बना दूंगा और ये बिक जाएगा, तो ऐसा नहीं चलता है, राइट। बहुत सारे शार्क टैंक में भी आपने देखे होंगे
कि हाँ मैंने ये आइडिया मेरा सोचा है, लेकिन वो रियल वर्ल्ड का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है, तो उसको फिर इन्वेस्टर्स भी उसको भाव नहीं देते, राइट? देन यू हैव टू बिल्ड द क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी कैसे बिल्ड करोगे आप? तो आपकी टीम कैसी है, टीम में सारे लोग अच्छे हैं कि नहीं, एक फाइनेंस देख रहा है, एक ऑपरेशन देख रहा है, एक टेक्नोलॉजी देख रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपके ऐसे सारी कलेक्टिव टीम बन जाती है, आपका नेटवर्क में आपने स्प्रेड किया और ट्रैक्शन मिल गया कि हाँ ये ऐप तो बहुत अच्छा है और मैं बहुत अच्छी तरीके से उसको बेच पा रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली क्रेडिबिलिटी बन जाती है। जैसे क्रेड की बनी, जैसे रेजर पे की बनी, राइट? तो उनकी टीम की ट्रैक्शन उन्होंने बनाया और फिर बहुत अच्छे तरीके से स्टोरी टेलिंग करी, तो आप उनको बहुत सारा अच्छा फंडिंग मिला पहले ही, और वही फंडिंग यूज करके उन्होंने फिर उसको ग्रो किया। फिर बहुत बहुत जरूरी, जो मैं बार बार हार्प कर रहा हूं, यू हैव टू अंडरस्टैंड हु इन्वेस्ट एट ईच स्टेज एंड व्हाट दे एक्सपेक्ट। बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो होते हैं, वो मैंने देखे हैं कि एक बार मैंने इन्वेस्ट कर दिया तो उसके बाद में मुझे लगता है कि मेरी कंपनी हो गई है, एंड आई स्टार्ट डिक्टेटिंग टर्म्स कि जो आप कर रहे हो ये ऐसा नहीं है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो जो फाउंडर होता है, जो स्टार्टअप इनिशिएटर होता है, उसको बहुत सफोकेटिंग लगता है, ठीक है? वो प्रॉब्लम उसको लगता है कि यार आइडिया तो मेरा है, मैंने तो पूरा एफर्ट लगा करके इस स्टेज तक लेके आया, प्रोडक्ट बनाया, ऐप बनाया, और फिर ये बोल रहा है कि नहीं नहीं ये मत करो, वो मत करो, राइट? तो इसीलिए मैं आपको पूरा समझा रहा था कि आपको कौन इन्वेस्टर है, वो क्यों आपके इन्वेस्ट करना चाहता है, ये सब जान करके ही आपको इन्वेस्टमेंट लेनी है। तो फंडिंग के लिए तो बहुत सारे लोग तैयार होते हैं, बट ऑन किससे फंडिंग लेनी है, कब लेनी है, कैसे लेनी है, वो भी बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है? डोंट चेस वैल्यूएशन। वैल्यूएशन पे ही सिर्फ मत जाओ कि नहीं जी मैं 10 करोड़ का वैल्यूएशन बनाऊंगा, मेरे को 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा और हो जाएगा। आपको वैल्यू बिल्ड करनी है कि उससे मैं क्या रिजॉल्व कर रहा हूं, मैं यूजर को, एंड यूजर को क्या वैल्यू दे रहा हूं, तभी आपके पास पैसा मिलेगा, राइट? वैल्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ऑल दिस थिंग्स। अभी तक हमने जो कहा है कि इन्वेस्टर्स कौन है, वैल्यूएशन कितना करना है, अभी ये मैं आपको बता रहा हूं रियल वर्ल्ड अपॉर्चुनिटीज जो आप सबके लिए अभी खुली हुई है, राइट? अभी एक यूएई इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लाइव है, ठीक है? इसमें सारे जो यूएई, यूनाइटेड अरब एमिराट्स के हाई पोटेंशियल इंडियंस है और उनके पास बहुत पैसा है, तो वो इंडियन स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, राइट? नॉट ओनली दैट, वो अपना पूरा यूनाइटेड अरब एमिराट्स का मार्केट एक्सेस भी दे रहे हैं, लाइसेंसिंग सपोर्ट भी दे रहे हैं और बहुत सारी फंडिंग भी दे रहे हैं, राइट? इसमें अगर आप अप्रोच करना चाहते हो तो आपको क्या मिलेगा? तो इंक्यूबेशन हो सकता है आपकी स्टार्टअप का, आपको मेंटोरशिप मिलेंगी, आपको डायरेक्ट इन्वेस्टर कौन है यूएई का, इसके पास बहुत पैसा है, वो आपको मिल सकता है, राइट? और जो इन्होंने कहा है अभी, आपको राउंड ट्रिप फ्लाइट्स, होटल स्टे, वहां का लोकल ट्रांसपोर्ट, आपको खाने के सब पैसा यूएई के लोग इन्वेस्टर्स देंगे, राइट? वो यूएई में आपका बिजनेस सेटअप करने के लिए, लाइसेंसिंग के लिए या मार्केट सपोर्ट के लिए आपको पूरा फंडिंग देंगे, राइट? तो अगर आपको ये अप्लाई करना है तो यू सर्च फॉर यूएई इंडिया CEPA सीपा स्टार्टअप सीरीज, और आपको इसमें अप्लाई करना है। अप्लाई करके अगर आपका स्टार्टअप सिलेक्ट हो जाता है तो आपको ये सारे के सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे, राइट? अब उसका टाइमलाइन सिर्फ आपको नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं। एप्लीकेशन ऑलरेडी चालू हो चुके हैं 24 जून से, और उसका पिच डेक सबमिशन है, जो कि आपको आइडिया सबमिट करना है कि मैं आपके लिए क्या सोल्यूशन लेके आ रहा हूँ, क्या एप्लीकेशन लेके आ रहा हूँ। तो ये आपको अर्ली सितंबर तक आपको जमा करना है, और फाइनल पिच राउंड होगा जो आपको दिल्ली में बुलाया जाएगा अक्टूबर 2025 में, ऑलराइट? और अगर आप सिलेक्ट हो गए दिल्ली में तो आपको यूनाइटेड अरब एमिराट्स में नवंबर 2025 से ऑफर्स मिलेंगे, राइट? तो क्या क्या ऑफर्स मिलेंगे
तो दे 100% फॉरेन ओनरशिप, गोल्डन वीसा आपको देंगे, टैक्स फ्रेंडली जोन देंगे वहां पे यूएई में, राइट। तो आप जो पहले भी मैं कह रहा था कि इंडिया के लिए प्रोडक्ट बनाओ, लेकिन एट द सेम टाइम यू मेक इट फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो, तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे आपको मिल रही है, राइट। तो ये सेपा फ्रेमवर्क, अगर आप उसका प्रीवियस रिकॉर्ड देखोगे 2022-23 से ये इन्होंने चालू किया है इंडिया में, क्योंकि उन्होंने देखा है कि इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप इकोसिस्टम फाउंडर्स हैं, इकोसिस्टम बहुत अच्छा है। तो ऑलमोस्ट $83 बिलियन का उन्होंने ट्रेड किया है, राइट। और सिर्फ 22-23 में ही उसको $3.35 बिलियन का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आया है, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि देखो कितना पैसा आ रहा है, कौन दे रहा है और आपको कैसे मिल सकता है। तो अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप सर्च कीजिए यूएई इंडिया सीपा स्टार्टअप सीरीज एंड आपको अप्लाई करना है। ऐसे ही एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी देता है, NCIIPC, नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। ये भी इन्होंने स्टार्टअप चैलेंज एक ओपन किया हुआ है, जिसका लिंक मैंने यहाँ पे दिया है आपको। इसमें उन्होंने एज ऑन डेट करीब करीब 12 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स ऑलरेडी दे रखी है। बहुत सारे स्टार्टअप्स को ये प्रॉब्लम होता है कि यार मैं स्टार्टअप तो करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास आइडिया नहीं है, तो कहाँ से सिलेक्ट करोगे। तो अगर आप सीपा की वेबसाइट पे जाओगे, NCIIPC की इस वेबसाइट पे जाओगे, तो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स भी मिलेंगे जिसको आपको सॉल्व करना है। तो जैसे इसमें आपको 12 प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिए गए हैं, दे आर रिलेटेड टू AI/ML इन साइबर सिक्योरिटी, फॉरेंसिक्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, जियोस्पैटियल, क्रिप्टोलॉजी, मैरिटाइम, ओसिन, और ये सारे डोमेन में अगर कोई आप में से जानकार है या आप में से करना चाहता है तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हो, राइट। इसकी भी एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है और लास्ट डेट 15 अगस्त है। 15 अगस्त तक आपको आपके पिक्चर सबमिट करने हैं। कितना पैसा मिलेगा तो वो भी मैंने यहाँ पे दे रखा है। टोटल प्राइजेस वर्थ करीब करीब 22 करोड़ तक के आपको पैसा मिलेगा। अगर 12 स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट में भी अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, ओके, तो आपको स्टेज 1 के लिए करीब करीब 6 करोड़ मिलेगा, स्टेज 2 के लिए करीब करीब 10 करोड़ मिलेगा एक ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए, और स्टेज 3 में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो करीब करीब 6 करोड़ मिलेगा। तो इतना अगर पैसा आपको मिल सकता है तो इस पैसे के साथ में आप कुछ भी कर सकते हो। thereafter आप अपना प्रोडक्ट अच्छा कीजिए, आप लोगों को हायर कीजिए और अपना स्टार्टअप बढ़ाइए। और जैसे ही आप बढ़ेंगे तो जैसे मैंने आपको पहले कहा है, सीरीज ए फंडिंग, सीरीज बी फंडिंग, तो वो सारे विकल्प आपके खुले हो जाते हैं। ओके, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी इज गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। भारत की रक्षा प्रणाली ने भी आपको ये आईडेक्स करके एक ऑप्शन दे रखा है, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस इज आईडेक्स। ओके, इसमें भी बहुत सारे ग्रांट है, जैसे आप देख रहे होंगे स्पार्क ग्रांट, आईडेक्स प्राइम, अदिति स्कीम, एक डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज है DISC, और एक ओपन चैलेंज भी है। तो इसमें क्या करते हैं, तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, और अभी इसमें बाकी सारे PSU भी जुड़ चुके हैं, बेल, HAL, DRDO, ये लोग अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आपको बताते हैं कि ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप आइए, हमें हेल्प कीजिए और हम आपको फंड करेंगे। तो कितना फंड मिलता है ये भी इस स्लाइड में आपको दिख रहा होगा कि स्पार्क ग्रांट के तहत आपको 1.5 करोड़ तक का फंड मिल सकता है। अगर आप हाई इम्पैक्ट और डीप टेक, जैसे आजकल ब्लॉकचेन आ गया, साइबर सिक्योरिटी आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग आ गया, तो इसमें अगर आपका डोमेन है तो आपको 10 करोड़ तक का फंडिंग भी मिल सकता है। ओके, और एक क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजी है, जैसे अगर आपको मिसाइल टेक्नोलॉजी में जाना है या क्रिटिकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जाना है, क्रिप्टोलॉजी में जाना है, तो ये हो गया क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजी। ओके, तो इसमें बहुत सारा आपको 25 करोड़ तक का भी फंड मिल सकता है। तो अगर आप आईडेक्स की इस वेबसाइट पे जाओगे तो आपको ये सारे डिटेल्स मिल जाएंगे कि इसमें क्या क्या, कौन से प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है, उसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो आपको सिर्फ अपना आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है और आपको इन एजेंसीज के पास अप्रोच होना है और आपको
अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो इतना फंड आपको मिल सकता है। अब ये आप लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए या यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्यों जरूरी है आईडेक्स? ओके, तो आप इसमें एज ए इंडिविजुअल इनोवेटर भी अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपके पास स्टार्टअप भी नहीं है अभी, लेकिन मेरे पास आइडिया है कि मैंने देख लिया है कि आईडेक्स की वेबसाइट पे ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और मुझे पता है इसका सोल्यूशन क्या है, तो मैं उसमें इन्वॉल्व होकर के कर सकता हूं। ठीक है, इसीलिए मैं आपको ये स्पेसिफिकली बता रहा हूं। तो अगर आपने देखा आईडेक्स की वेबसाइट पे जाकर के ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसका मेरे पास तोड़ है, सोल्यूशन है, तो मैं इनके पास आईआईटी कानपुर के पास जा सकता हूँ सीड फंडिंग के लिए। बहुत सारे इंक्यूबेटर्स है जो आईडेक्स ने पार्टनर कर रखे हैं, तो आप उनके पास जाते हो और वही आपको फिर हेल्प करते हैं कि आपका स्टार्टअप बनाने के लिए। फिर स्टार्टअप बनाने के बाद में आपको को फाउंडर आपको लेके आना है, आपको सीटीओ लेके आना है, टेक्नोलॉजी बंदा लेके आना है, अकाउंट्स का बंदा लेके आना है, एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर लेके आना है। तो ये सब आपको मेंटोर किया जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है कि आपके पास सिर्फ आइडिया है या फिर आपके पास स्टार्टअप है तभी आप कर सकते हो, नहीं, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ इनोवेटर होने चाहिए, आपके पास इनोवेटिव माइंडसेट होना चाहिए, राइट? तो अगर आपके पास वो इनोवेटिव माइंडसेट है तो आप इस आईडेक्स चैलेंज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओके, इसमें फोकस एरिया आजकल के इन 2025 फोकस एरिया इन आईडेक्स इज एआई एंड एमएल, रोबोटिक्स, यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, साइबर सिक्योरिटी, वियरेबल टेक्नोलॉजी। आपने बहुत सारे स्मार्ट वॉचेस देखे होंगे या बहुत सारी आजकल बॉडी पे वेयर करने वाली टेक्नोलॉजीज आ गई है, तो वो भी बहुत सारी आर्मी दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, और अगर आप ये कर सकते हो तो आपको डिफेंस की ओर से बहुत सारे पायलट प्रोजेक्ट्स भी मिल सकते हैं। तो पहले तो आपको सिर्फ एक इनोवेशन लेके जाना है, आपको आईआईटी कानपुर या ऐसे बहुत सारे उनके इंक्यूबेटर्स है उनके साथ में कोलैबोरेट करना है, वही आपको फंड देंगे, वही आपको गाइड भी करेंगे, तो आपका स्टार्टअप भी बन जाएगा, फंड भी मिल जाएगा, एंड देन यू विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द डिफेंस इकोसिस्टम ऑफ इंडिया। ये जस्ट आपके पास एग्जांपल्स है, राइट? तो बहुत सारा आपको स्लाइड में बहुत कुछ है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये लिस्ट दी है मैंने। बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस करके एक स्टार्टअप है चेन्नई का, जिसने एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम बनाया है, राइट, जो कि आर्मर के थ्रू पियर्स होके जा सकता है। ओके, इसको पहले सिर्फ स्टार्टअप था, उसको अभी आर्मी ने ऑर्डर भी दे दिया है, जो कि बॉर्डर सर्वेलेंस पे बहुत काम आ रहा है अभी, राइट? ऐसे ही ये पूरी लिस्ट आपके पास अवेलेबल है। ऑप्टिमाइज इलेक्ट्रोटेक हो गया, अहमदाबाद का ही है। तो दे आर बेसिकली प्रोवाइडिंग एआई पावर्ड लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस सिस्टम, पेरिमीटर सिक्योरिटी के लिए, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस के एयरबेस होते हैं, आर्मी का इलाका है, या फिर अभी डीआरडीओ के कुछ लैब्स है, भाभा एटॉमिक रिसर्च एटॉमिक फैसिलिटीज है, राइट? इन सबकी पेरिमीटर सिक्योरिटी के लिए बहुत कारगर है। तो ऐसे बहुत सारे अगर आप देखोगे तो ये स्टार्टअप्स ने आईडेक्स में अपने जलवे दिखाए हैं। तो आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप में से कोई भी ऐसा सीड फंड आइडिया लेकर के आ सकता है और सक्सेसफुल हो सकता है। ये कैसे, ये सारे स्टार्टअप जो मैंने बताए ये क्यों आए सामने, वो कैसे बताया? तो एक्चुअली उन्होंने रियल ऑपरेशनल प्रॉब्लम, जैसे मैं पहले बता रहा था कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा होना चाहिए, तो इन्होंने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, तभी इनको ना कि फंडिंग मिला है बट अभी बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिल रहे हैं। ओके, फिर उन्होंने क्या किया है? तो पहले जैसे मैंने बोला कि सिर्फ इनोवेशन लेके मैं गया और उन्होंने वर्किंग प्रोटोटाइप बनाया करीब करीब 12 से 18 महीने में। तो 1 से 1.5 साल में उन्होंने पूरा प्रोटोटाइप भी बना दिया, और उसके बाद में उनको फिर जैसे प्रोटोटाइप बनाया, उनको फिर ग्रांट मिला, फिर उसके बाद में फिर मैंने प्रोडक्ट को इंप्रूव किया, फिर मैं आर्मी के पास गया, तो उन्होंने फिर ऑर्डर दिया, तो वो ऑर्डर करीब करीब 100 करोड़ का, 200 करोड़ का ऐसे मिलता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव इकोसिस्टम लाइफ साइकिल आपकी तैयार हो जाती है, राइट? और आपको बोनस क्या है? तो प्रोक्योरमेंट माइलस्टोन्स ये मैंने सिर्फ आपके कहने के लिए दिखाया है। एज ऑफ 2024 14 आईडेक्स डेवलप प्रोडक्ट्स है जिनको की एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिल चुका है, करीब करीब 380 करोड़
करोड़ का वैल्यूएशन का, राइट। तो इतना पैसा गवर्नमेंट ऑलरेडी दे रही है उन स्टार्टअप्स को जिन्होंने आईडेक्स के थ्रू सामने आए हैं। तो और उन्होंने प्रोटोटाइपिंग 24 महीने से, दैट इज 2 साल में करके दिखाया है, राइट। तो 2 साल में ही उन्होंने जो भी उनका आइडिया था उसको प्रोटोटाइप बना करके फाइनल प्रोडक्ट भी बना दिया। और फिर ये पूरा पॉसिबल है गवर्नमेंट की फंडिंग से, ऑलराइट। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू स्ट्रेस हियर। अभी ये मैं आपको टिपिकली बिफोर क्लोजिंग माय सेशन आपको स्पेसिफिक दे रहा हूं कि सिर्फ गुजरात में इतने सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। तो यू कैन टेक अ स्नैप ऑफ दिस स्लाइड और यू कैन यूज इट व्हेनेवर यू फील लाइक। तो आपको सिर्फ ये iCreate.org.in या आई हब गुजरात, ये गुजरात का स्टार्टअप हब है। फिर एक गिफ्ट सिटी यहाँ पे बनी हुई है, तो गिफ्ट सिटी में भी एक फाइनेंस इनिशिएटिव हब वहां पे बना हुआ है, जो कि आपको 3 महीने तक फ्री ऑफ कॉस्ट स्पॉन्सरशिप भी देता है, ट्रेनिंग भी देता है और आपको हेल्प करता है आपका स्टार्टअप बनाने के लिए। आपके पास आइडिया भी नहीं है तब भी आप जाकर के वहां पे अप्लाई कर सकते हो, पूछ सकते हो, वो आप लोगों को हेल्प करेंगे, राइट। गिफ्ट आईएफ हो गया, क्रैडल, देयर इज अ इंस्टीट्यूट कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ईडीआई, जो अगेन अहमदाबाद में है। ये भी आपको बहुत सारा हेल्प कर सकती है। एक गिफ्ट सिटी में ही आईएफएससी है, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज सर्टिफिकेशन अथॉरिटी। तो ये भी आपको फिनटेक वर्ल्ड में अगर आपका स्टार्टअप है तो ये भी आपको इंक्यूबेट कर सकते हैं। तो इंक्यूबेशन मतलब क्या? तो इंक्यूबेशन में आपको आइडिया से लेकर के प्रोडक्ट बनाने तक आपको जो भी मेंटोरशिप चाहिए, आपके पास मेंटोर्स अवेलेबल होंगे, आपके पास फंडिंग अवेलेबल होंगी, आपके पास जगह अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर 6 मंथ्स, दे गिव फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सिर्फ आपको वहां जाना है, आपका दिमाग लगाना है और एक प्रोडक्ट बनाना है। तो अगर आप ये कर सकते हो तो फंड की इंडिया में तो भी कोई कमी नहीं और गुजरात में तो बिल्कुल ही नहीं है। ऐसे ही गांधीनगर में एक एसटीपी है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। तो ये बहुत जरूरी स्लाइड है आप सब लोगों के लिए जो कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में इंटरेस्ट रखते हैं, ऑलराइट। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इसमें एक्सप्लोर कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो फंडिंग के लिए। तो ये पूरा जो जितना मैंने कहा है इसका निचोड़ यही है कि आपके पास फंडिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, फ्रॉम फैमिली, बूटस्ट्रैपिंग, फ्रेंड्स, एंजल इन्वेस्टर्स, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट एंड ऑल दिस थिंग्स। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। आपको क्या करना है? स्टार्ट स्मॉल और थिंक एंड ग्रो बिग, राइट। और इन सबके लिए प्रिपरेशन आपको होना चाहिए कि यार मैं अगर किसी के पास जा रहा हूं तो एटलीस्ट एक कुछ प्रिपरेशन करके जाऊं कि मेरा आइडिया क्या है, मेरे को आपसे क्या चाहिए। अगर आप ये बता ही नहीं पा रहे हो तो आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। और सबसे ज्यादा जरूरी जो खुशबू ने भी कहा है ओपनिंग स्टेटमेंट में कि नेटवर्किंग इज द की। तो आप नेटवर्क करते रहिए, आपको नेटवर्किंग से ही बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जो कि आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो कि फंडिंग के लिए हो गया, मेंटोरशिप के लिए हो गया, ग्रोथ के लिए हो गया। तो आपको ये सबके लिए बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करेगा। अगर आपके पास अभी कोई क्वेश्चंस है, ये मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है, आप स्कैन कर सकते हो और आप रीच आउट कर सकते हो। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट एट एनी स्टेज। तो लाइक आई सेड अर्लियर, बहुत सारे इश्यूज है जो कि बहुत सारे वेंचर कैपिटल ऑप्शंस अवेलेबल है, एंजल इन्वेस्टर्स अवेलेबल है, जिनके मैं टच में हूं या मैं जानता हूं इन लोगों को, तो वो फंडिंग अरेंज हो सकती है। तो दैट इज ऑल व्हाट आई हैव टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर दैट।
Yes, so if anyone has any questions, kindly drop them in the chat box or unmute yourself and speak. Yeah, I will share the presentation. Don't worry. These are all open source available. I have collated it for all of you. So it is available off the shelf. Through the team, I will share it with you. Thank you so much, sir. Thanks a lot. So it was a wonderful session, and I think all the participants have gained so much insight from this session. Thank you so much, sir. Now, I would like to request, yeah, a QR code would be shared to fill the feedback form. I request everyone to fill that. And lastly, and most importantly, thank you to all the participants for being such a wonderful team. This event wouldn't have been possible without you guys. Thank you so much. Thanks, Samir sir. Thank you so much. My pleasure. You are all-rounder of Gujarat section. Thank you so much. And definitely, there are a lot of options which are coming up: ERT, AI, SOI, WLC. Right. So we'll keep networking and keep growing. Yeah, so Khushbu, just give idea about ERT and AISIWLC to participants. Yeah, that So will be they better. Sure, sir. So, first of all, I would start with ERT. ERT is actually a platform where many speakers come together, and it is about emerging technology. So, it is already been done twice, and this time it is going to be done at Kadi Sarvi Vidyalaya in Ahmedabad. So, if anyone is interested, we would share that form with you guys in the group as well. So, kindly fill it out, and we hope to see you over there. Secondly, AISYWLC. Guys, I cannot speak more about this. AISYWLC, it has been 11 years since it came to Gujarat, and this time it is going to be in Gujarat, and we all would be doing everything to make this wonderful. I do not have the words to say like how excited I am for that event. We have already started working towards it, and we'll see you guys. We want you guys over there. So so Chirag sir, can I tell them about our place? Like, can I disclose them to everyone? yes, you can go ahead. Okay. So AISYWLC, this time it would be held at Adani University and Nirma University together. And as you guys already know, they have a wonderful infrastructure, a state-of-art infrastructure, if I can say that. And like you'll see, like, if you guys already have IEEE Gujarat section ID, you can look at that and you will see, like, how we are planning and how we have started doing everything. And definitely, it is going to be like, one in a million event. Yes, Adil, do you want to Yeah. say anything? Yes, sir. Am I Yeah, audible please. clearly? Yes, Yes, you you are are. audible. या तो सर इनिशियल लेवल पर जब स्टार्टअप होता है तो सभी जगह पर गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की भी एक ऐसी पॉलिसी थी ग्रांट के लिए कि जिसमें मिनिमम वायबल प्रोडक्ट एमवीपी कंपलसरी होता है। तो फिर उसके लिए अगर जो फंडिंग चाहिए होती है तो फिर उसकी कुछ पॉसिबिलिटीज रहती है, क्योंकि मैं अभी एक एडटेक स्टार्टअप पर वर्क कर रहा हूँ। सो उसमें गेम डेवलपर्स एंड ईआर एंड सब इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। सो हाई कॉस्ट है इसलिए। जरूर मिल सकती है। तो इसीलिए मैं बोला आपको बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। कुछ कुछ लोग अगर आप एंजल इन्वेस्टर के पास जाओगे वो ट्रैक्शन देखेंगे,
गवर्नमेंट के पास जाओगे वो देखेंगे कि पैसा उनका कितना मिल रहा है। सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल। कौन सा एरिया है, कौन सा डोमेन है, उसके हिसाब से आप कर सकते हो इसको। EdTech startup, you can go to iCreate और iHub गुजरात, तो इसमें आप जा सकते हो। तो अगर आपका आइडिया भी है तो उसको अच्छी तरह से तरीके से ट्रैक्शन मिल सकता है। या ईडीआई में भी ईडीआई क्रैडल करके जो मैंने दिखाया लास्ट स्लाइड में, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है जो आपको आइडिया के लिए भी फंड दे सकता है, फंड कर सकता है। ओके, थैंक यू सर। Okay, so if there are no more questions, I would like to request our team to share the memento for our wonderful speaker for today's session. Thank you so much, sir. As a Thanks host, a lot. even I have gained so much from it. Thank you, sir. We'll keep seeing you again in our events and sessions. For sure. Thank you. So, Samit sir, you have to be an angel investor for final idea pitching now. Yes. So they will gain more from you. Correct. And that we are planning to have during AISY WLC. Wonderful. Definitely. Okay. So, thanks once again. Okay. Bye. Hello. Thanks a lot. Thank you, sir. Wonderful session. Thank you so much. Thank you. Thank you very much.